has to give like the number of rows, like what number of rows you want, and then Python will run it accordingly. So you just have to provide the value of n, and then automatically the function will take that value and run it for you. You don't have to define each and every time that I want this much or I want this much. You just have to define it once and Python will run it automatically, right? So first our range will be from 0 to n, and then we can write it for our column. So for column we can write it for j in range, and this will be from 0 to I plus 1, because now I will be taking our values from here, right? So we have to update I as well here. So that will be my final range. So basically I represents the rows here, and then whatever you want, you can write it here, say print, and you want star here, and then you just end it with a negative space, and then you can print out here. Now we are using one more type of a inbuilt function saying slash r. Now what I think everyone knows what slash backslash n stands for. Yes, sir. Change the line, I think. Yes. So backslash n basically stands for creating a new line, or whatever you want to print, it will start from a new line. Okay. What backslash r basically does is it will move your cursor to the start of a line. That's it. Like it won't create a new line, but it will just shift the cursor to the start of the line, whatever line you currently the code is in. Okay, that's what backslash r basically does. Okay. So now here what we have done is we have just created our function. Now previously in the last lecture we saw that what happens is sometimes you have to end your function saying giving you a return value, but here we don't want it. Why? Because we have given a generalized function. We have defined a generalized function which basically functions for a pattern type of thing. The return value basically works when you are working with any kind of algorithm whereby you want a particular output from your algorithm. Okay, at that time you want your function to return you a solid value, but here we have, because we have just created a function for a generalized way, so that's why we won't be giving any return function to us, because we don't want a particular output from this function. We want that the function should run all of these script and give us whatever the output is. Right? Now what you have to do is you have to define the value of n, because this function won't run until and unless you haven't given the value on which it depends. So whole of your function basically depends on this value, that is n. So n has to be user defined. So what you do is you define the value of n. Let's say I give the value of n as 5, and then you can do this. Now what this line statement here means that up until here you have created your pattern. Yeah, you have created your basic function that will print out the desired pattern for you. Now here you are defining the value on which your basic function is dependent upon. So your function is dependent upon the value of n, which is user defined. So you have given a user defined value. Now whenever you are defining a function in a generalized way, you always have to call your function again, right? Because until and unless you don't call your function, Python doesn't recognize where this value will hold true, right? So what you have to do is you have to call your function by the name you have created. So we have created the value as pattern, and then in the parentheses just give the argument n. So what Python here does is it first takes the value, that is 5, and then it puts the value 5 here, and then it says, oh, user is asking me to call this particular function. Then it goes back and see whether this function is defined or not. So it says, okay, this function is defined here, and then it puts the value 5 here and runs it and give you the final result. Okay, so once you run it, you see you can get again the same kind of pattern here, right? So what is happening, let's say we all comment this out, okay, and then we just run it. So what happens is you will get an error. What is the error? Name error, saying that pattern is not defined, because we have already commented out everything and we haven't. So what Python does is it takes the first value, that is, okay, the user has defined a variable n which stores the value of 5, but what is this pattern? This wasn't defined by the user at all. So that's why it gives you a name error saying pattern is not defined. So how would I run anything? So that's why you have to create the function or whatever you want. So you created a function named as pattern, and then Python, when it goes into this, it says, okay, pattern is defined by user, and whatever the value of n is, that is the parameter on which my function will depend. So now what Python does is it goes to this pattern, puts the value of n as 5, and then it starts doing this particular loop. So it goes here, it says, okay, the range is 0 to 5.
and value of I is basically, it starts from 0, so it is in this range. It goes to this, and then it prints, keep on printing the same thing again and again until the pattern, the parameter here goes till 6. So once it goes to 6, the pattern fails, and then it will give you the final output up until 5. So once you print it, once you run it, this is the output that you will get. So is this clear with everyone how to make use of a pattern? यस सर वो मैं पूछ रहा था कि सर जैसे कि यूजर डिफाइन है, मैं चाहता हूँ कि मैं वहां पे एंटर करूं वैल्यू की मुझे 5 या फिर 6 कॉलम चाहिए, मतलब जैसे कि वहां पे जैसे हम एंटर करते थे ना 2 या 5 कौन सा ऑड है इवन है वो प्रिंट करता था। मैं चाहता हूँ कि मैं वहां पे 10 लिखूं या 5 लिखूं, मतलब कोड में मैं डिफाइन नहीं करना चाह रहा हूँ कि n = 5 है। ओके सर वहां पे इनपुट फंक्शन यूज कर लेंगे ना फिर। हाँ बेसिकली वही जो हमारा इंटीजर इनपुट फंक्शन होता है ना, वी कैन यूज दैट, बट देन उसमें एक इशू हो सकता है व्हिच यू गाइस कैन कहां पे लिखेंगे, मतलब लास्ट में कि ऊपर लिखेंगे इनपुट फंक्शन? वो तुम कहीं भी लिख सकते हो। द बेस्ट वे टू डिफाइन इट इज मेक जस्ट द बेस्ट वे इज टू डिफाइन इट हियर। ओके, सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू विल बी वर्किंग विद एनी काइंड ऑफ एल्गोरिथम ना, या कोई भी तरीके का प्रोग्राम जब हम काम करते हैं, सो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज कि लेट्स से कि तुम कोई एक बायो इन्फो के उस पे काम कर रहे हो, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट तुम्हारा है जहाँ पे तुम्हारे पास कोई डीएनए सीक्वेंस है, एक आरएनए सीक्वेंस है। लेट्स से तुमको डीएनए टू आरएनए, लाइक डीएनए से एमआरएनए बनाना है, फिर एमआरएनए से प्रोटीन सीक्वेंसिंग करना है, जो भी करना है, ठीक है, एंड उसके लिए तुमने एक फंक्शन को डिफाइन कर दिया है। सो द वेरी बेस्ट वे टू डू इट और अ स्ट्रक्चर्ड वे टू डू इट कि जो भी कांस्टेंट वैल्यूज तुम्हारे पास होते हैं ना, उनको स्टार्टिंग में पूरा डिफाइन कर दो, जितने भी कांस्टेंट वैल्यूज है, ओके, एंड उसके बाद तुम फंक्शन क्रिएट करना चालू करो उन चीजों के लिए जो वेरिएबल्स है। वो सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर्ड वे होता है कि तुम्हारे पास जो डेटा है उसमें जितने भी कांस्टेंट वैल्यूज हैं, फॉर एग्जांपल लेट मी जस्ट गिव अ वेरी ब्रीफ एग्जांपल, ओके, कि वैसे इसका ज्यादा यूज बायो इन्फो में नहीं हो पाएगा, कंप्यूटेशनल जो सिस्टम्स बायोलॉजी तो उसमें ज्यादा यूज होगा। लेट्स से कि मेरे पास कोई भी एक मैं सपोज कि एक न्यूरॉन के बारे में अगर लेट्स से बात करता हूँ, ठीक है, तो कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसपे न्यूरॉन काम करता है, एंड वो पैरामीटर्स जो होते हैं उसमें कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो कांस्टेंट वैल्यू होते हैं, जो बेस वैल्यू होता है, जिसको हम लोग बेस वैल्यू कंसीडर करते हैं, ठीक है। जैसे एक मेम्ब्रेन कैपेसिटेंस होता है, उसको हम सीएम से डिनोट करते हैं, इसका वैल्यू होता है 1 माइक्रोफैराड। तो ये क्या होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू रहेगा, ये चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो कैसा होता है कि जब हम किसी भी न्यूरॉन के लिए कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, तो जो भी कांस्टेंट वैल्यूज होते हैं ना, वो हम स्टार्टिंग में डिफाइन कर देते हैं, जितने भी कांस्टेंट वैल्यूज होंगे हमारे लिए, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। एंड देन यू शुड गो विद द वेरिएबल वन, एंड देन उसके बाद जो भी मेरे वेरिएबल्स होते हैं, तो अब एक मैं एग्जांपल देता हूँ जहाँ पे वेरिएबल पैरामीटर पे भी डिपेंड करेगा एंड मुझे एक रिटर्न वैल्यू भी चाहिए, तो वो मैं कैसे करूंगा। तो लेट्स से मैंने एक वैल्यू डिफाइन किया, यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर दी है, एंड लेट्स से क्योंकि एवरीवन नोज कि इन अ पर्टिकुलर सेल मेम्ब्रेन हमारे पास सोडियम एंड पोटेशियम चैनल्स होते हैं, राइट? इतना बेसिक सबको मालूम है, लाइक बेसिक मॉलिक्यूलर सेल कांसेप्ट, राइट? तो अब कैसा होता है कि फॉर एग्जांपल इन न्यूरॉन्स आल्सो यू हैव टू क्रिएट अ चैनल, ओके, सो लेट्स से मेरे पास सोडियम के वैल्यूज है, तो व्हाट आई विल राइट इज सोडियम वैल्यूज, एंड व्हेन यू विल लुक एट द डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिस इक्वेशंस पे ये वैल्यू डिपेंड करता है ना, वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक v का वैल्यू सेट कर दूंगा जिसपे मेरा वो डिपेंड करने वाला है सोडियम वैल्यूज, एंड देन यहाँ पे मैंने कुछ भी जो भी मेरा वो है डिफरेंशियल इक्वेशन है वो मैंने यहाँ पे अपना वो कर दिया, फाइनल यहाँ पे प्रिंट आउट कर दिया, ओके। एंड देन मुझे क्या चाहिए वो मैं यहाँ पे रिटर्न करूंगा। तो लेट्स से कि मेरे को सोडियम वैल्यूज में से कुछ 2-3 नंबर्स होते हैं, जैसे m हो गया, n हो गया, h हो गया, कुछ होता है। तो मैं क्या करूंगा, जब ये पैरामीटर्स तुमको चाहिए होते हैं ना, तो कीप दिस थिंग इन माइंड, व्हेनेवर यू आर रिटर्निंग सम वैल्यूज from a particular function, these values has to be defined here inside the function, right? That means you are asking the function कि मेरे को ये values भाई चाहिए जो मैंने define किए। तो अगर तुमने ये numbers यहाँ ये values यहाँ पे define नहीं किए इस particular function में, तो तुमको error आएगा, same चीज कि m and h are not defined, name error आ जाएगा। तो उसके लिए तुमको करना पड़ेगा, m को कुछ डिफाइन कर दिया, n को कुछ डिफाइन कर दिया, h को कुछ डिफाइन कर दिया, एंड देन यू रिटर्न द वैल्यूज। सो व्हाट बेसिकली दिस फंक्शन हियर डज इज कि वो वोल्टेज का वैल्यू लेगा, एंड देन ये m, n और h, मतलब ये यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी पैरामीटर्स मेरे यहाँ पे हैं वो सब वोल्टेज डिपेंडेंट है। तो जो भी v का वैल्यू होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो सारे वैल्यूज इनपुट करेगा, m, n और h का वैल्यू कैलकुलेट करेगा, एंड मेरे को फाइनली m, n और h रिटर्न कर देगा, क्योंकि मेरे को m, n और h चाहिए। अगर मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए इसमें से, तो मैं क्या करूँगा, इस रिटर्न वैल्यू को लिखूंगा नहीं, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दूंगा उसको, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन डू इट, जहाँ पे तुम्हारा फंक्शन एक पर्टिकुलर पैरामीटर को रिटर्न भी कर रहा है, ओके। दिस इज क्लियर? यस सर। Okay, and one more thing, like you guys are facing the problem with that particular question, जिसमें less than 3 and greater than वाला था issue.
यस सर, वो सिर्फ 3 नंबर के साथ. So, but I tried it, but it gave me the right result. Let's say I have two variables a and let's say b को मैंने 10 कर दिया, ठीक है, and I gave a condition saying if a is greater than b, then print greater, else print smaller. And if I run it, I get smaller because a का वैल्यू b से छोटा है. Let's say मैं a का वैल्यू बड़ा कर देता हूँ, 3 कर दिया, b का वैल्यू 1 कर दिया, and now I print it. It gives me greater. मेरे लिए तो काम कर रहा है ये वाला. Like what exactly were you guys writing in that code? Were you doing it in this way? Yes sir, in the similar way. I think if we try it again now, we should get it. Yeah, because I am getting the right result here, so that's why I was wondering यार ऐसा तो नहीं होगा कि एक particular number के लिए issue आएगा. हाँ, वो सिर्फ वो एक ही नंबर के लिए सर, बाकी का पूरा कोड तो रन कर रहा था. तो probably, I don't know, if we try it again, it's still facing problem, then we'll ask you. Okay, sure, no issues. Okay. So now we will be looking at another program whereby we will be let's say do a prime number thing. Okay, we'll be studying about the prime numbers, how to print a prime number. So if anyone can tell me what is a prime number? Sir, any number which is not divisible by itself or which is divisible only by itself or by 1. Right. उसको like code करने का एक और basic तरीका है which only has two factors, one and the number itself, right? ठीक है. So now let's say कि हमें एक program लिखना है in which we have to find prime numbers between two numbers, let's say. Okay. So how do you think we should do it? Let's say कि मैंने दे दिया दो नंबर दिया है जो let's say हमारे पास एक range है from 1 to 100 और इसके बीच में you have to give me write a program जो तुम्हें prime numbers को list करके देगा कि these are the prime numbers between 1 and 100. So what should be the logic behind that? We will give, let's say we take x to be, and then we can give x divided by x is equal to 1. X divided by 1 is equal to x. Oh, I'm sorry, I didn't got that. Can you please repeat it again? So if it's divisible by the number itself or 1, right? So we give x divided by x should Okay. be equal to 0, or Okay. x divided by 1 should be equal to x, Okay. or something हाँ around. सर, मतलब if else condition से भी तो कर सकते हैं. मतलब if x mod x is equal to 0 and x mod 1 is equal to 0 is equal to 0. Okay. Anyone else? Okay. So let's say कि हमें उसको एक range में calculate करना है, like say from 1 to 100 or something like that. ठीक है. The first thing you are sure कि उसमें एक range तो पक्का वो रहेगा ही हमारा, क्योंकि हमें एक upper range रहेगा, एक lower range हमारे पास रहने वाला है. ठीक है. Now the next thing यहाँ पे अब कैसा हो जाता है कभी-कभी कि you have to keep a condition saying that कि जो हमारा prime number रहेगा that is always greater than 1. 1 से तो हमेशा बड़ा रहने वाला है, इतना तो अपने को मालूम है, क्योंकि 1 is not a prime number, right? तो 1 से तो हमेशा बड़ा रहेगा हमारा prime number. So let's say कि हमारे पास ना एक हमने range ले लिया है, हमारे पास range है 1 to 100. Okay? तो हम क्या करेंगे, for let's say x in range 1 to 101, क्योंकि हमको 100 तक लेना है, let's say. ठीक है, ये हमारे पास हो गया. अब हमारे पास कंडीशन क्या रहेगा कि इफ सबसे पहला हमारे पास जो कंडीशन है वो ये होना चाहिए कि हमारा प्राइम नंबर तो हमेशा 1 से बड़ा होता है. ठीक है, क्योंकि ये 1 से चालू कर रहे हैं हम लोग, 1 से लेके हमको 101 तक जाना है, तो 1 तो नहीं होने वाला है. तो जब पाइथन 1 को लेगा हमारे रेंज में, देन इट विल गिव अस अ रॉन्ग रिजल्ट, और इट विल से दैट 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर. वो तो नहीं होना चाहिए, राइट? तो हम लोग को पहला एक ऐसा कंडीशन देना पड़ेगा जिसमें हम 1 को इंक्लूड नहीं कर सकते. तो क्यों ना डायरेक्टली ऐसे कंडीशन से स्टार्ट करें जिसमें वो 1 को लेगा ही नहीं, डायरेक्टली ऐसे कंडीशन से ले जहाँ पे 2 से स्टार्ट होने वाला है. तो व्हाट वी विल डू इज वी विल राइट इफ
और लेट्स से x is more than 1, हमने कंडीशन दी है कि जब तक हमारा x 1 से बड़ा होगा तभी ये वाला लूप रन करेगा, अगर वो 1 से कम छोटा है तो वो लूप को रन ही नहीं करने वाला है. So if our x is more than 1, what we can write is, then we'll write our for loop saying that let's say for I in range 2 to n. Now why we have given this particular loop is कि पहले पाइथन क्या करेगा, वो एक x नंबर ले रहा है जो हमारा इस रेंज में है 1 से लेके 100 तक का. जैसे उसने फर्स्ट एक नंबर लिया 1, वो 1 लिया, वो यहाँ पे आया, उसने कहा इज 1 ग्रेटर देन 1, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया. तो फिर वो क्या करेगा, आगे जाएगा, वो वापस से इस लूप में आएगा, एंड देन इट विल टेक अनदर नंबर 2. नाउ इट सेज ओके इज 2 ग्रेटर देन 1, हाँ तो ये कंडीशन तो ट्रू हो गया. देन इट गोज इनटू दिस लूप. नाउ हियर वी हैव टेकन अनदर रेंज व्हिच इज फ्रॉम 2 till n, whatever the value of our n basically is, so sorry not n, x here basically, कि जो भी हमारा वैल्यू x का रहेगा वो उसी रेंज तक हमारा कैलकुलेट करते रहेगा, एंड बिकॉज वो हर स्टेप पे उसको कैलकुलेट करना है ना एक नंबर के लिए, इसलिए हमने यहाँ पे उसको x तक रखा है कि यहाँ पे भी हमारा x का वैल्यू कितना है 2 है. तो जब वो यहाँ पे आएगा तो हमारा रेंज आ जाएगा 2 से लेके 2 तक. दैट मीन बेसिकली रेंज क्या हो गया, नंबर हो गया हमारा 2. तो वहां से फिर वो कैलकुलेट करना चालू करेगा एक एक नंबर के लिए, फिर जो उस रेंज में वैलिड है या फिट बैठ है, राइट. So it will calculate for I in range 2 to x, and then here you can give another condition जो हमारा basic condition रहेगा to check whether a number is prime number or not, is to find the remainder. So what you can do is, if your x modulus I is equal to 0, right? क्योंकि अगर let's say अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि we'll write a break condition. So what this basically stands for, कि पहले उसने क्या किया, पाइथन ने एक नंबर लिया, ठीक है, जो हमारे इस रेंज में, लेट्स से x का वैल्यू 1 है तो 1 की तो कंडीशन ट्रू नहीं है, उसने हटा दिया. फिर उसने वैल्यू लिया 2, एंड देन उसने 2 के वैल्यू पे क्या किया कि ये कंडीशन तो ट्रू हो गया, तो फिर वो इस लूप में गया. अब यहाँ पे उसने क्या लिया, i का वैल्यू लिया इस रेंज में, तो अब इस रेंज में 2 का वैल्यू, करंट सिचुएशन x का वैल्यू कितना हो गया 2, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू 2 था, यहाँ पे भी x का वैल्यू 2 हो गया. अब उसने कंसीडर किया फॉर i इन रेंज 2 से लेके 2 तक, सो वो पहला नंबर कंसीडर करेगा, दैट इज 2. अब वो यहाँ पे गया, अब उसने कहा कि इफ x मॉड्यूलस i इज इक्वल टू 0, तो x यहाँ पे क्या है हमारा 2, i क्या है 2, सो इज 2 डिविजिबल बाय 2, सही है, तो वो क्या करेगा, स्टेटमेंट को ब्रेक करेगा. नाउ व्हाट ब्रेक स्टेटमेंट डज, याद है, It will break the loop. वो बेसिकली क्या करेगा, इस लूप को ब्रेक कर देगा, इसके आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है. फिर वो क्या करेगा, वापस से इसी लूप में जाएगा फॉर में. अब वो देखेगा कि यार अभी जो मेरा 2 का तो वैल्यू तो अभी भी 2 है, लेकिन फिर लेट्स से उसने अभी एक इंक्रीमेंट करके 3 इसको किया लेट्स से, लेकिन वो तो इस कंडीशन में ट्रू बैठ नहीं रहा है, राइट. तो वो क्या करेगा कि जैसे ही ये कंडीशन तुम्हारा सेटिस्फाई हो रहा है ना, वो इस लूप को ही ब्रेक कर दे रहा है, वो इस लूप से बाहर निकल जाएगा ऑटोमेटिकली, एंड देन वो अगेन इस लूप में जाएगा, एंड देन यहाँ से फिर वो अपडेट करके नेक्स्ट नंबर लेगा. लेट्स उसने 3 लिया, ठीक है. अब वो जब 3 ले रहा है तो वो क्या कर रहा है यहाँ पे कि 3 से जब वो यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा है, तो उसने लिखा कि फॉर i इन रेंज 2 से लेके, लेट्स से यहाँ पे भी वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, अच्छा 2 to 3 हो गया हमारा वैल्यू यहाँ पे. तो अब वो क्या कर रहा है, इसको ट्रू बैठ रहा है क्या, हाँ वो ट्रू बैठ रहा है, तो उसने फिर यहाँ से डिवाइड किया उसको, फिर देखा कि ओके ये वाला भी ट्रू बैठ रहा है, उसने यहाँ से लूप को ब्रेक कर दिया. बट अगर यहाँ पे हम लोग जब 3 ले रहे हैं, ठीक है, लेट्स से कि अब यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया, लेट्स से x का वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाता है, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू हो गया. फिर वो यहाँ पे आया, नाउ x का वैल्यू इज 4, तो पहला वो वैल्यू क्या लेगा, i लेगा 2, तो 2 जो है वो 2 से 4 के रेंज में है, ट्रू है. यहाँ पे गया, उसने कहा ये कंडीशन भी 2 के लिए ट्रू हो रहा है, तो वो क्या करेगा, लूप को ब्रेक कर देगा. देन वो वापस गया, देखा कि अभी 3 भी तो है, तो उसने i का वैल्यू 3 दिया. 3 जो है वो अभी भी 2 से 4 के रेंज में है, लेकिन 3 के लिए ये कंडीशन तो ट्रू नहीं बैठ रहा है, ये बैठ रहा है. Is this condition true for 3 if your range is from 2 to 4? No. No. तब तो वो ट्रू नहीं बैठ रहा. Sir, just wanted to ask, जब हम 3 ले रहे हैं तो x की वैल्यू तो 3 होगी, मतलब रेंज 2 to 3 हो गई, तो उसमें x की वैल्यू तो 3 है, बट i की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी. So I will take your value from here, 2 लेगा, क्योंकि 2 से 3 के रेंज में बेसिकली वो क्या करेगा, 3 तो ले नहीं सकता है, क्योंकि वो उससे हमेशा एक वैल्यू कम लेगा, एंड वो पहला वैल्यू लेगा यहाँ से जो भी रेंज स्टार्ट हो रहा है, तो वो वैल्यू लेगा 2 का, राइट. तो ये क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2, 3 मॉड्यूलस 2, एंड वो तो 0 के बराबर नहीं होता है, राइट, क्योंकि 3 मॉड्यूलस 2 में हमको तो रिमाइंडर 1 मिलेगा.
आंसर अगर 2 to 5 लेंगे, हाँ ठीक है, तो x का वैल्यू 5 हो गया। अब वो क्या करेगा, 5 को हर एक नंबर से डिवाइड करेगा। तो जब पहले 5 केस में divided क्या by हो 2, जाएगा, 5 पहला divided वैल्यू by 2 है, 3, 5 divided by 4. 5 डिवाइड बाय 4, फिर 5 डिवाइड बाय 5, ऐसे करके करेगा, वो कैलकुलेट करेगा। Okay. तो बेसिकली ब्रेक स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि जिस कंडीशन पे ये कंडीशन ट्रू हो जा रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि प्राइम नंबर्स में इशू कैसा हो रहा है कि फॉर एग्जांपल मान लो कि तुमने 3 लिया, ठीक है, 3 तो प्राइम नंबर होता है, राइट। लेकिन जब यहाँ पे तुमने 3 किया, लेट्स से x का वैल्यू 3 में रहा है, ठीक है, और i का वैल्यू 2 है उस टाइम पे, तो 3 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन ट्रू नहीं बैठ रहा है, राइट। क्योंकि जब 3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको रिमाइंडर 1 मिलता है, एंड वी नो कि 3 इज अ प्राइम नंबर, तब तो ये कंडीशन ट्रू बैठ नहीं रहा। तो वो क्या करेगा, इसको ऑटोमेटिकली जो है वो जाएगा ही नहीं इस कंडीशन में अपने आप, ठीक है। वो वापस से क्या करेगा, इस कंडीशन में जाएगा, फिर क्या देख रहा है कि यार यहाँ पे तो वो हो ही नहीं रहा, ट्रू बैठ नहीं रहा, क्योंकि 3 तो मेरा रेंज था, तो यहाँ पे वो i का वैल्यू 3 पे तो जा नहीं सकता, तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, ये वाला लूप भी ब्रेक हो जा रहा है, फिर वो वापस से अपने आप इस लूप में आ जाएगा, और फिर वो एक वैल्यू अपडेट करेगा रेंज का, एंड देन फिर वो वापस बढ़ते जाएगा। बेसिकली ये लूप हम क्यों रन कर रहे हैं, ये लूप उन नंबर्स के लिए हम बेसिकली रन कर रहे हैं जो खुद से मतलब जब डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या जाएगा, वो ब्रेक करेगा वहां से लूप को अपने आप, and फिर वो आगे रिपीट करेगा। जिस जिस कंडीशन में, जिस नंबर्स में ये कंडीशन ट्रू नहीं बैठ रहा, उस कंडीशन में तो ये लूप चलेगा ही नहीं, उस कंडीशन में तो ये लूप ही ब्रेक हो जाएगा पूरा का पूरा, एंड देन वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चले जाएगा फिर। एंड देन तुम्हें एक कंडीशन और यहाँ पे देना पड़ेगा क्या, कि इफ ट्रू था तो फिर ठीक है, नहीं करेगा, एल्स प्रिंट जो तुम्हारा आगे का यहाँ पे नंबर, ठीक है, वो प्रिंट क्या करेगा, तो फिर जो तुम्हारा एक्स हो गया या जो भी तुम्हारा हो गया नंबर हमें प्रिंट चाहिए यहाँ पे, तो फिर आगे कर दो। तो यहाँ से तुम्हारा पूरा Keshav, can you please? I was facing some network issue. Yes, sir. Yeah. Okay, so is this clear with everyone, or should I again like explain it? Sir, I did not understand. Okay. I'll quickly explain it again. So what was happening here is कि हमें what we want to do was कि we had a range from 1 till 100 and we wanted to print our prime numbers. Okay, so now we know that first thing is there is a range, so we have to give a range function here. So and we have to take a particular number from that range. So our logic is कि first we know what a prime number is. That is, a prime number is a number which has only two factors, one and the number itself. And second logic is prime number is the same issue. Keshav, please can you make me the host again? Thank you. Okay, so what is happening here is first we have to take a number from this particular range. So we have defined a range, and then we have given a first condition saying if a number from this particular range is more than 1, then only this loop will run. Otherwise, this will break out. So what this particular statement does is, screen is not visible. No, sir. No, sir. Just I have shared my screen, but just a second. I'll share it again. Is it visible now? No. No, sir. Still not visible. No, So sir. I think there's a network issue because I have already shared it. So maybe there's a lag in the network. लो होगा Yeah. इसलिए स्ट्रीम नहीं हो रहा शायद. हाँ maybe इसलिए वो ऐसे stream नहीं हो पा रहा होगा अभी. Still it's not visible. No, sir. No, sir. The same network issue again. So I think that's why the screen is not maybe visible. maybe we can continue this in the next class. I think. Sure, it's 6:55 right now. Okay, no issues. So I'll just update you guys with the assignment for today's lecture.
Okay, so basically the looping thing is, this is how a loop basically works out. Okay, so once you try it with different conditions and all those things, it will be better for you to understand. Tomorrow we'll be basically looking at the application portions for the Python, like how to build a calculator and all those things using Python language. Okay, and from day after tomorrow we will be starting with our BioPython lectures. Okay, so what I want is keep by tomorrow at least. Please try to update everything, because I still haven't got the GitHub account of everyone. Okay, so please try to create a GitHub account, and whatever assignments are there, please try to do it on time, so that before starting BioPython we have covered at least the basics of Python at least.